Hello students, welcome back to my channel. Today we shall continue the grammar topic direct and indirect speech. In the previous video lectures, we have explained the rules for changing tenses, personal pronouns, and words denoting nearness of time and place. Today we shall discuss conversion of imperative sentences from direct to indirect speech. What is an imperative sentence? An imperative sentence is the sentence which expresses request, advice, order, or invitation. For example, prepare a cup of tea for me. This is an order. Please help me. This is a request. You should go for a morning walk daily. This is an advice. While changing imperative sentences into indirect speech, the following rules should be observed. Number 1 is change the reporting verb according to the sense. As a request can be expressed by the words request, beg, ask, etc. An advice can be expressed by the words advise, urge, forbid, etc. An order can be expressed by the words order, command, tell, etc. Number 2 point is the verb of the reported speech is changed into an infinitive. देखिए रिपोर्टेड स्पीच को हम इन्फिनेटिव में चेंज करते हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इन्फिनेटिव क्या होता है. व्हाट इज एन इन्फिनेटिव? An infinitive is the basic form of a verb. It often acts as a noun and starts with the word to. यानी ये to से start होता है, to के साथ में verb लगाई जाती है, to plus verb. जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं to be, to arrive, to prepare. Okay. Third is if the reported speech is negative, the word not is placed before the to infinitive. To infinitive कैसे? Not to हो जाएगा. Fourth point is no conjunction is used to introduce the reported speech. यहाँ conjunction का यूज़ नहीं किया जाता, to infinitive का यूज़ किया जाता है. हमने फर्स्ट रूल में किया था कि रिपोर्टिंग वर्ब को हम सेंस के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं. तो यहाँ एक एक करके इसको समझते हैं. इफ़ अ रिक्वेस्ट हैज़ बीन मेड, वी चेंज सैड इनटू रिक्वेस्टेड और बेग्ड. फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट में है ये, ही सैड टू हितेश हेल्प मी प्लीज़. हमने यहाँ पर लाइन चेक करनी है रिपोर्टेड स्पीच की, हेल्प मी प्लीज़. यहाँ हमें देखने से ही पता चल रहा है कि रिक्वेस्ट की जा रही है, तो हमने इनडायरेक्ट फॉर्म में इसको ऐसे लिखना है, ही रिक्वेस्टेड हितेश टू हेल्प हिम. मी को हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया हिम. सेकेंड इज इन केस there is an advice, we change the reporting verb sad into advised. For example, he said to me, help your younger brother. यहाँ एडवाइस दी जा रही है तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, he advised me to help my younger ब्रदर. योर को हमने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग माई लिख दिया. वी चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब सैड into ordered or commanded.
when some big officer or authority gives an order. For example, the commander said to the soldiers, "Pick up your guns and open fire at the enemy." When we change in indirect form, the commander ordered the soldiers to pick up their guns. Your को हमने soldiers के according change कर दिया their guns and open fire at the enemy. Conversion of imperative sentences with let, यानी जो सेंटेंस let से स्टार्ट होते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि let का मतलब क्या है. ये दो तरीके से यूज़ किया जाता है. let मीन्स अ टाइप ऑफ ऑर्डर, यानी एक ऑर्डर ऐसा जिसमें ऑर्डर दिया भी जा सकता है और ऑर्डर लिया भी जा सकता है, मतलब परमिशन भी ली जा सकती है इसमें. और सेकंड है let इन द फॉर्म ऑफ अ प्रपोजल. तो सबसे पहले let के फर्स्ट पॉइंट को समझते हैं, अ टाइप ऑफ ऑर्डर. If the word let expresses order or permission, we change it into some phrase. इसको हम phrase में change कर सकते हैं, might be allowed, या फिर इसको simple भी change कर सकते हैं, to let. Example से इसको clear करते हैं. He said to the watchman, "Let the visitor come in." तो यहाँ पर वॉचमैन को ऑर्डर दिया जा रहा है. ओके, तो जब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो इसको टू टाइप से चेंज कर सकते हैं. ही ऑर्डर्ड द वॉचमैन, सैड टू को हमने ऑर्डर्ड में चेंज कर दिया. टू लेट द विजिटर कम इन, या तो हम इसमें यूज़ करेंगे टू इन्फिनेटिव का, या नेक्स्ट जो हमने फ्रेज यूज़ करनी है, ही ऑर्डर्ड द वॉचमैन दैट, यहाँ पर कंजक्शन यूज़ हो जाएगी दैट द विजिटर माइट बी अलाउड टू कम इन. यहाँ पर हमने फ्रेज यूज़ कर दी माइट बी अलाउड. सेकेंड इज अ प्रपोजल. व्हेन लेट कन्वेज अ प्रपोजल, यानी लेट है वो डिनोट कर रहा है प्रपोजल को, तब रिपोर्टिंग वर्ब किस में चेंज होगी, प्रपोज्ड और सजेस्टेड में, एंड लेट इज रिप्लेस्ड बाय शुड. एग्जाम्पल से इसको क्लियर करते हैं. मानू सैड टू हर सिस्टर, लेट अस गो टू द मार्केट टुगेदर. चलो दोनों मार्केट चलें. तो यहाँ पर प्रपोजल दिया जा रहा है. जब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तब क्या होगा, मानू प्रपोज्ड टू, प्रपोज्ड इसके साथ टू लगेगा, प्रपोज्ड टू हर सिस्टर दैट, यहाँ हम कंजक्शन का यूज़ कर रहे हैं दैट, दे शुड गो टू द मार्केट टुगेदर, यहाँ पर हमने लेट को रिप्लेस करके शुड यूज़ कर दिया है. ओके